नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सूएज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। सो हियर इट इज। आज मैं सूएज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात करूंगी। टुडे विल टॉक अबाउट सूएज ट्रीटमेंट प्लांट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Sewage treatment plant. So this is it. So there are three types of processes in a sewage treatment plant. First is primary treatment, then comes secondary treatment, and then comes tertiary treatment. Primary treatment is a physical treatment. It's a physical process. We don't use chemicals. We mostly don't use chemicals in it. Secondary process or secondary treatment is the biological process. So we use microorganisms here. And tertiary treatment or tertiary process is the chemical process. So we use chemicals here. So let me start with screening. So first stage in any sewage treatment plant, be it industrial sewage or municipal sewage, is screening. And there are usually two types of screens. The coarse screen, COARS, coarse screen, which is for screening out paper, wood pieces, metal pieces, or big plastics. Then comes fine screen. So fine screen is for the removal of big gravels or other big sand particles, etc. Then comes grit removal and flow equalization. So for grit removal and flow equalization, this process is usually, the two processes are usually done in one single tank, like here, screening, then grit removal and flow equalization. So what is flow equalization? Sewage coming from industries or municipal sewage comes at its own flow rate, but the treatment needs a fixed flow rate of sewage. So at the screening stage, you cannot control the flow rate of sewage. But at the flow equalization tank, we collect the sewage and then we transfer that sewage to the primary sedimentation tank at a fixed flow rate. So that is called flow equalization. Basically, the flow equalization tank or the flow equalization process is basically a flow optimization process where you control the flow rate of sewage to the next stage. And because at this stage, sewage is brought and allowed to settle in a tank, so the bigger particles also happen to get removed at this stage. And this stage, that is why, also happens to do grit removal. So grit removal and flow equalization is usually done at the same stage. Sometimes it might be done at two different stages, like first will be grit removal and then will be flow equalization. But mostly the two processes are done in the same tank. And sometimes grit removal and flow equalization are not needed. So basically there is coarse screen and fine screen, and then directly primary sedimentation comes in where the effluent or the sewage is collected, and from there on it is transferred to the aeration tank. So what I want to convey is these are all the processes that happen in a sewage treatment plant. But some sewage treatment plants might have lesser processes. They can skip one of the stages. It depends on the type, on the quality and quantity of sewage, right? And sometimes in industrial effluent also, it depends on the quality and quantity of industrial effluent. So first is screening, coarse screen, then fine screen, then is grit removal plus flow equalization, then is primary sedimentation. So what we do in primary sedimentation tank, we check the pH of the sewage. If the pH is at the optimum range at which microbes can or bacteria can act, then in that case, the sewage is allowed to settle down in the primary sedimentation tank, and relatively clear sewage from top is sent to the aeration tank. And at the bottom of the primary sedimentation tank, the sludge deposits. Here, the sludge will deposit and the sludge is taken out. And in the aeration tank, usually activated sludge. So here the sludge which is taken out is the sludge from the sewage. But here in the aeration tank, activated sludge is added. Activated means it is being activated, it is being aerated. So that is added, and usually cow dung is added. There are other types of activated sludge, but cow dung is added. Aeration tank is called aeration tank because air is bubbled from below the tank. So there is a tank like this, and there are wheels located here, 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 here below the tank, and wheels continuously they
they go round and round, they move round and round, and as a result, air is continuously diffused in the aeration tank, and that is why the bacteria from the sludge acts on the sewage and degrades the sewage, and it is a continuous process. So the upper liquid, the upper sewage from the aeration tank is continuously transferred to the secondary sedimentation tank. In the secondary sedimentation tank, the sludge which is there in the sewage settles down at the bottom, and the clarified water is then passed through a filter. Again, filtration is a step which is optional. Sometimes they do filter it, sometimes they don't, depending upon the quality of the sewage. And after filtration comes disinfection. Disinfection is a very important step in sewage treatment, and it is never skipped. The most important steps in sewage treatment are screening, primary sedimentation, aeration, secondary sedimentation, and disinfection. These steps are never skipped. Others are optional. Okay. So in disinfection, usually bleaching powder is added. However, there are other chlorination compounds that could be added, but bleaching powder is cheap, so it is usually added. And the liquid, the sewage is disinfected, and then it is let out. I forgot to describe filtration. So filtration is usually the filter is usually made of gravels at the bottom, coarse sand at the top, and relatively fine sand at on the topmost layer. And sewage, the treated sewage from the secondary sedimentation tank goes to the filter, goes from the fine sand to the coarse sand, and then to the gravel, and finally is removed from the bottom to the disinfection tank. Now, what happens to the waste sludge? Because sludge is continuously being produced in the primary sedimentation tank, then activated sludge from the secondary sedimentation, from the aeration tank and the secondary sedimentation tank. So this waste sludge is either biodigested to produce biogas, or it is just spread on the ground to get dried and sold as a fertilizer. अब इसी को मैं हिंदी में दोहरा दूं तो पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, स्क्रीनिंग होता है, फिर ग्रिट रिमूवल होता है, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है. इसमें हम किसी तरह का केमिकल यूज करने से बचते हैं, फिजिकल प्रोसेस है. उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो उसके बाद होता है एरेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है. और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डिसइंफेक्शन करते हैं. तो स्क्रीनिंग में होता है कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन. कोर्स स्क्रीन मोटा मोटा होता है, जाली, जब मोटी मोटी जालियां होती हैं उससे प्लास्टिक, वुड पीसेस, मटेरियल सब हटा लिए जाते हैं. उसके बाद आता है फाइन स्क्रीन. स्क्रीन मतलब होती है छन्नी. फाइन स्क्रीन से जो रेत वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं या बड़े पत्थर वगैरह पीसेस होते हैं वो सब हटा लिए जाते हैं. उसके बाद होता है ग्रिट रिमूवल प्लस फ्लो इक्वलाइजेशन. तो बेसिकली एक बड़ा सा टैंक या नाद होती है जिसमें कि जो इनकमिंग सूएज या एफ्लुएंट है वो कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि स्क्रीन से जो पूरा सूएज है वो बहुत तेजी से आ रहा होता है और उतनी तेजी से हम आगे सप्लाई नहीं करते हैं. तो उसको रोकने के लिए फ्लो इक्वलाइजेशन प्रोसेस टैंक का इस्तेमाल किया जाता है. फ्लो इक्वलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, कि उसका फ्लो को, सूएज के फ्लो को रिड्यूस किया जाता है यहाँ पे, ताकि आगे का ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चल सके. और इसी टैंक में जब, क्योंकि सूएज जब ठहरता है तो जो मोटे मोटे कुछ ग्रेवल वगैरह उसमें अभी बच गए हैं वो तले पे बैठ जाते हैं, और उसी को प्रोसेस को कहते हैं ग्रिट रिमूवल. ग्रिट मतलब छोटी छोटी ग्रेवल से गिट्टियां वो बैठ जाती हैं तले में और वही रिमूव हो जाती है, तो ग्रिट रिमूवल. तो फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक में ही अक्सर ग्रिट रिमूवल भी हो जाता है. कभी कभी इस प्रोसेस को स्किप भी कर देते हैं, सीधे स्क्रीनिंग ही कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो सब कुछ रिमूव हो गया और उसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में लाके पानी को ठहरा देते हैं. पानी में एक ठहराव आता है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को कभी स्किप नहीं करते, वो हमेशा होता है. तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब पानी फिर ठहरा, ग्रिट रिमूवल हो गया, अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन में पानी आया, सूज आया, अब वो सूज ठहरा, तो फिर उसमें जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, कीचड़ वगैरह होंगे, वो सब जो कि सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो अब तले में बैठ जाए. ठीक है, और उसको भी हम स्लज ही कहते हैं. और उसके बाद जो रिलेटिवली क्लियर सूएज है उसको हम एरेशन टैंक में भेज देते हैं. एरेशन टैंक को एरेशन टैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एरेशन मतलब हवा दी जाती है. ऊपर टैंक कैसे होता है, टैंक ऐसे होता है, ऊपर पानी होता है और नीचे उसमें पहिए लगे होते हैं, पहिए जोर जोर से घूमते होते हैं. और जब वो पहिए जोर जोर से घूमते हैं ना, तो वो एयर को डिफ्यूज करते हैं, एयर को बबल करते हैं उस सूएज में, और उसमें स्लज ऐड किया जाता है उसी एरेशन टैंक में. स्लज जनरली गाय का गोबर हो सकता है या कोई और स्लज सॉलिड जिसमें कि बैक्टीरिया काफी मात्रा में होते हैं. तो वो स्लज का जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक, और जो एयर बबल हो रहा है तो उसकी वजह से एरोबिक कन्वर्शन हो रहा है,
और उस एरोबिक कंडीशन में स्लज का एरोबिक बैक्टीरिया सूएज को डिग्रेड कर देता है। तो ये होता है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, और यही यही सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन मकसद होता है। तो अब एरेशन टैंक में जो सूएज का जो बायोलॉजिकल मैटर है वो डिग्रेड हो चुका है, और जो क्लियर सूएज है ऊपर से धीरे धीरे सेडिमेंटेशन टैंक में कंटिन्यूसली जाता रहता है। और सेडिमेंटेशन के बाद अगर जरूरी लगता है तो फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन जो होता है वो जनरली सैंड का फिल्टर होता है। तो ऊपर बारीक सैंड होती है, उसके नीचे थोड़ी मोटी सैंड होती है, उसके नीचे ग्रेवल यानी मोरंग जैसा कुछ होता है, और सब थोड़ा मोटा मोरंग होता है, और सबसे नीचे जो है वो पत्थर लगे होते हैं। तो सैंड आराम से वो सूरज जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो क्लियर सूरज है वो अब फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होके और क्लियर हो जाता है, और उसके बाद उसको डिसइंफेक्शन के लिए भेजा जाता है। डिसइंफेक्शन सूरज ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसको कभी स्किप नहीं किया जाता है, क्योंकि सूरज में इतना ज्यादा बैक्टीरिया है कि अगर उस सूरज को कहीं भी हम डालेंगे, कहीं भी किसी नाले में, कहीं जमीन पर, तो वहां का जो बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन है जहां वो सूरज गिरेगा वो खराब कर देगा। इसलिए डिसइंफेक्शन करते हैं, ताकि सूरज में जो इतना बैक्टीरिया हुआ है उसको मार दिया जाता है, और फिर उसको अपना आप नदी में बहा दीजिए, या फिर आप उसको इंडस्ट्री में ही, अगर इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में साफ सफाई के काम में ले आते हैं, अगर म्युनिसिपल सूरज है तो उसको साफ सफाई के काम में भी लाते हैं। और कहीं कहीं जगह जैसे बॉम्बे वगैरह में म्युनिसिपल सूरज को ट्रीट करके फिर ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं स्लज का क्या होता है। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज था वो रॉ स्लज था, उसमें कोई बैक्टीरिया अभी तक एक्ट नहीं किया है, वो सिंपली म्युनिसिपल सूरज यहाँ ठहरा, तो जो यहाँ पे नीचे मिट्टी और रेत वगैरह हल्की फुल्की जो नीचे गिरी और बायोलॉजिकल मैटर वो यहाँ था, और ये जाता है आगे। और फिर एरेशन टैंक में भी स्लज होता है, तो वो भी स्लज, क्योंकि स्लज के एक लाइफ टाइम होते हैं। एरेशन टैंक में अगर आपने स्लज या गोबर डाला है आज, तो एक हफ्ते में उसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो गोबर रहा वो वेस्ट है, तो उसको भी निकाल दिया जाता है नीचे से। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी जब वो पानी गया तो उसमें भी स्लज मिक्स्ड है, तो वो भी पानी जब ठहरता है तो नीचे बॉटम में स्लज होता है, वो स्लज भी निकाल दिया जाता है। और ये तीनों स्लज का दो तरीका होता है, या तो वो बायोडाइजेशन के लिए जाते हैं। बायोडाइजेशन मतलब एक एनारोबिक एक टंकी होती है, जैसे सिंटेक्स की पानी की टंकी होती है कभी कभी वैसी, क्योंकि मैंने कोको कोला में देखा है तो वैसा दिखता है, सिंटेक्स की पानी की टंकी की तरह ही काला, थोड़ा सा बड़ा, और वो एनारोबिक कंडीशन होता है उसके अंदर, और उस पर सारा स्लज जाके बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है और स्लज पूरा बायोडिग्रेड हो जाता है। और उस प्रोसेस में या तो बायोगैस बनती है, और अगर बायोगैस रिकवर नहीं करना चाहता तो सिंपली उस स्लज को उठा के एज अ फर्टिलाइजर बेच दिया जाता है। दूसरा होता है कि इस स्लज को जो तीनों सोर्स है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एरेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, तीनों जगह से जो स्लज निकला उसको हम बायोडाइजेस्टर में ना भेज के और जमीन पे ऐसे ही फैला देते हैं, और वो सूख जाता है, और फिर उस सूखे हुए स्लज को हम एज अ फर्टिलाइजर सेल कर देते हैं। तो दोनों ही तरीका होता है। जब कोको कोला में मैंने इंटर्नशिप की थी तो मैंने स्लज ड्राइंग बेड जिसको कहते हैं, जमीन पर जो स्लज फैला दिया जाता है, वैसा कुछ नहीं देखा था, वहां बायोडाइजेस्टर था। क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास अक्सर जमीन की कमी होती है, लेकिन उनके पास पैसा सफिशिएंट होता है, इसलिए वो एक बायोडाइजेशन प्लांट लगा देते हैं, वहां पर स्लज इकट्ठा होता रहता है, डिग्रेड होता रहता है, और फाइनली जब उनको लगता है कि अब बायोडाइजेस्टर भर गया होगा तो सूरज वहां से निकाल के वो एज फर्टिलाइजर सेल कर देते हैं। पर क्योंकि म्युनिसिपल सूरज में क्या होता है कि सरकारी होता है म्युनिसिपल सूरज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहां सरकार के पास पैसा लिमिटेड है लेकिन जमीन काफी होती है, तो अक्सर म्युनिसिपल सूरज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सारा स्लज है उसको बायोडाइजेशन ना करके वो लोग जमीन पे फैला देते हैं, और वहां जो स्लज होता है वो सूख जाता है, और फिर उसको एज अ फर्टिलाइजर सेल कर देते हैं। जमीन पर जो स्लज फैलाते हैं जिसको हम स्लज ड्राइंग बेड कहते हैं, तो उसमें ये चीज का ख्याल रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि वो जो स्लज, क्योंकि स्लज में काफी सारे बैक्टीरिया है और उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो ऐसा ना हो कि वो स्लज का पानी रिस के ग्राउंड वाटर से मिले। तो कोशिश ये की जाती है कि जिस जमीन पर स्लज ड्राइंग बेड जो बनाया गया है वो प्रॉपर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर हो और उसके नीचे सीमेंटेड हो, ताकि वो स्लज का पानी रिस के ग्राउंड वाटर से ना मिले, ऐसी कोशिश की जाती है। मतलब टेक्निकली ऐसा किया जाना चाहिए। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके शहर में कोई ना कोई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जरूर होगा, वहां विजिट करें और पता करें कि वहां पे ये कौन कौन से प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, स्क्रीनिंग, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एरेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और डिसइंफेक्शन, ये जो 4 स्टेजेस, ये जो 5 स्टेजेस हैं स्क्रीनिंग का, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एरेशन, सेकेंडरी और फिर डिसइंफेक्शन, इनको कभी स्किप नहीं किया जाता, ये मैंडेटरी स्टेजेस है। ग्रिट रिमूवल और फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक होना चाहिए, पर कहीं कहीं पे इसको स्किप कर दिया जाता है क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग काम करती है। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी होना चाहिए, पर कहीं अक्सर इसको स्किप कर दिया जाता है, ये मैंडेटरी नहीं, ठीक है। और बायोडाइजेशन
भी हो सकता है और स्लज ड्राइंग बेड भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को अगर आप कोई दूसरा सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का प्लान देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये बताया और आपने ये मुझसे सुना और फिर कहीं और आप कुछ और देख रहे हैं। ये बेसिक स्टेजेस हैं जो मैंने सारे कवर किए हैं। बाकी हर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत के हिसाब से इंजीनियर्स उसको डिजाइन करते हैं और कुछ स्टेजेस को स्किप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मगर कुछ स्टेजेस जो जैसे स्क्रीनिंग है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है, एरेशन है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है और डिसइंफेक्शन है, इसको कभी स्किप नहीं कर सकते। तो ये है। कभी क्वेश्चन पूछते हैं सुएज और एफ्लुएंट में क्या फर्क है। सुएज जो वर्ड है वो सुअर पाइपलाइन से बना है, जो पाइपलाइन से होते हुए आता है, जैसे कि म्युनिसिपल सुएज है तो वो हर जगह जो सुएज होता है म्युनिसिपैलिटी में वो पाइप से कलेक्ट होता हुआ आता है, तो सुअर पाइप से गुजरता हुआ आता है, इसलिए उसको सुएज कहते हैं। एफ्लुएंट जो होता है इफ्लक्स वर्ड से बना है, मतलब बाहर निकलने वाला। तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, जनरली एक इंडस्ट्री होती है और उसका जो एफ्लुएंट है वो उसी इंडस्ट्री में ट्रीट कर लिया जाता है, तो वो किसी सुअर पाइपलाइन से गुजरने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सीधे नालियों से होता हुआ वो सिंपली उसी इंडस्ट्री के सुएज के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाता है। तो सुएज और एफ्लुएंट में कोई खास फर्क नहीं है, बस सुएज क्योंकि सुअर पाइपलाइंस में जा रहा होता है तो पाइपलाइंस में अगर जा रहा है तो सुएज है, और इंडस्ट्री से निकल रहा है सीधे डायरेक्ट वो ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है तो वो एफ्लुएंट है। तो दोनों एक ही बात है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। आई होप मैंने आपको सभी कुछ कवर कर दिया है, और इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का प्रश्न। और एक बात, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और एरेशन टैंक, यहाँ पे स्लज का सर्कुलेशन होता है। सो हियर एट द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन when the sludge deposits at the bottom, 30% of the sludge from the secondary sedimentation tank is sent back to the aeration tank for reuse, and that this happens continuously. This entire process is a continuous process. Okay, I hope what I taught about sewage treatment plant today was pretty clear to you, and all the best. If you have any questions, any doubts, or I was a little fast today, let me know, and thank you. Jai Hind, Jai Bharat.